started with Customs Act. So what was the definition and charging section in Customs Act? Section number 12. Now what is there in section number 12? We have seen charging section. It is a tax, it is a duty of customs. किसके ऊपर levy होगा? On import of import into India or export from India, and of what? Of goods, not of services. It will be of goods. And then we have seen there were certain definitions. Okay, and उसमें at rates goods के ऊपर लगेगा, but at what rates? At rates given in the Customs Tariff Act 1975. So rates are given, duty का rate is given under Customs Tariff Act 1975, and it is given under two schedules, Schedule 1 and Schedule 2. Schedule 1 के अंदर है rates for import and Schedule 2 के अंदर है rates for export. Okay. Then we have seen certain definitions. तो उसमें सबसे पहला कौन सा definition देखा था हम लोग ने? इंडिया का definition. So what is the definition of India? Okay, it includes all the landmass of the country, जितना भी landmass है वो, as well as it includes the territorial waters up to 12 nautical miles, and after that it includes up to 200 nautical miles, but after 12 nautical miles we have only exclusive economic zones and other maritime zones which are there, continental shelves and exclusive economic zones after 12 nautical miles, that is up to 200 nautical miles. Okay, after that we have seen custom waters, Indian custom waters. How much, up to how much Indian custom waters is extended? It includes territorial waters as well as up to 200 nautical miles. But what is the relevance of Indian custom waters? We can search, arrest, then chase any aircraft or vessel, and we can confiscation with respect to the Indian law. After 200 nautical miles, if we want to perform these activities, then we have to take permission of the international law. Okay, then we have seen what do you mean by goods. तो goods के अंदर क्या? We have seen import. Import मतलब क्या? To bring into India from a place outside India. Then we have seen export. What do you mean by export? To take from India to a place outside India. Then we have seen goods. Goods मतलब क्या? Vessel, aircraft और vehicle. वेसल, इनको क्या बोलते हैं? इन तीनों को क्या बोलते हैं? कन्वेयंस भी बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज कन्वेयंस ऑल्सो. सो वेसल, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेयंस. अब वेसल जो चला था उसको कौन क्या बोलते हैं? मास्टर और कैप्टन. एयरक्राफ्ट जो चला था उसको कौन बोलते हैं? पायलट इंचार्ज. एंड व्हीकल जो चलाएगा वो कौन बोलते हैं? उसको ड्राइवर. दीज थ्री आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सन इन चार्ज. Okay, these three are also called as person in charge. After this we have seen, ये जो लैंड होते हैं तो उनका स्टेशन क्या रहता है? Vessel is landed at customs port. Airport is landed at customs airport, and vehicle is landed at land customs stations. These are called as customs stations. इन तीनों को क्या बोलते हैं? customs stations भी बोलते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव सीन स्टोर्स. व्हाट डू मीन बाय स्टोर्स? Any goods which are taken on board or vessel or aircraft for what purpose? For consumption. This is important. क्यों हम लोग उसको एयरक्राफ्ट वगैरह में लोड कर रहे हैं? For consumption purpose. Okay. After that we have seen baggage. What do you mean by baggage? Baggage means which is accompanied. जो भी पैसेंजर का लगेज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैगेज. So if it is of passenger or if it is of crew member, it is called as baggage. Understood everyone this much? ठीक है. बैगेज हो गया. उसके बाद पॉइंट आता है गुड्स. हम लोग ने गुड्स का समरी लिखा था. गुड्स 1 2 3 4 क्या क्या था? फर्स्ट इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट या व्हीकल. Second was stores, third was baggage, next was currency and next was goods. तो हम लोग ने baggage तो देख लिया. उसके बाद दो, कौन सा सीरियल नंबर है? नंबर कौन सा है ये? Fourth. So he fourth as currency and
negotiable instruments. Okay, currency and negotiable instruments. तो अब currency and negotiable instruments में क्या है? Whenever you are coming from outside India, or you are going to any other country, or you are coming back from any other country, and you are bringing with yourself currency. अगर आप कोई currency लाते हो, for example I went to लंदन एंड मैं वहाँ से पाउंड्स लेके आई, आई वेंट टू यूएस एंड मैं डॉलर्स लेके आई, तो यू कैन कैरी एनी नंबर ऑफ करेंसी. ओके, करेंसी के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगता है. सो हियर ड्यूटी इज नील अंडर कस्टम्स एक्ट. ओके, हियर ड्यूटी इज नील अंडर कस्टम्स एक्ट. कस्टम्स टैरिफ एक्ट में ड्यूटी नील है. टैरिफ एक्ट जो है जहाँ पे रेट्स दिया है वहाँ पे ड्यूटी क्या है? नील है. लेकिन गुड्स के इसमें क्यों डाला है डेफिनेशन में? जस्ट फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस. सो कवर्ड इन डेफिनेशन, फॉर monitoring purpose. Understood everyone? Okay, next आता है, next is goods. Goods means any kind of goods, whatever amount of, for example if I bring 100 kg of any kind of movable property, it includes any kind of movable. What does it includes? It includes any kind of movable property. If you are transferring, you are bringing into India, or you are taking it back from India, if it is any kind of movable property, it is covered under the definition of goods. And if it is goods, then it is levied under the Customs Act. तो वो Customs Act के एम्बिट में आ जाएगा. कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट के एम्बिट में आ जाएगा. आया समझ में? ठीक है. नाउ यहाँ पे इन गुड्स इफ देयर आर इंटेंजिबल एसेट्स, इन गुड्स ओनली, सपोज इफ देयर आर एनी इंटेंजिबल एसेट्स. इंटेंजिबल एसेट्स मतलब क्या? कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मूवी है, ये सब चीज़ें अगर है, देन इन दैट केस फॉर एनी सॉफ्टवेयर or any music, any software or any music, तो ये जो intangible assets है, these are considered as goods only if they are loaded in any physical medium. They are considered as goods only if they are loaded in any physical. ठीक है. सो इफ यू आर लोडिंग इट इन एनी फिजिकल मीडियम, देन मतलब फॉर एग्जांपल कोई पेन ड्राइव में डाल के आपने एयरपोर्ट को दिया, या फिर एनी सॉफ्टवेयर इज देयर, एनी म्यूजिक इज देयर, कोई म्यूजिक सीडी के अंदर वो म्यूजिक डाल के अगर दिया, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज दैट यू आर एक्सपोर्टिंग दैट म्यूजिक. Okay, if you are putting it, if you are loading it any physical medium and then you are transferring it, then it will be considered as goods. Understood? Yes. So base, what is the summary of goods? क्या क्या include होता है? सबसे पहले vessel, aircraft और vehicle, stores, baggage, currency and negotiable instruments, and any kind of movable property, that is goods. Understood this much? Yes, ma'am. Written everyone? Yes, ma'am. नेक्स्ट फिफ्थ था ना ये, मतलब टोटल डेफिनेशन फिफ्थ है, लेकिन इसका कौन सा था? गुड्स का कौन सा डेफिनेशन था?
सिक्स, फिफ्थ हो गया ना, तो ये सिक्स आएगा. लिखो इम्पोर्टेड गुड्स. इम्पोर्टेड गुड्स. ओके, गुड्स का डेफिनेशन खत्म हो गया. इन गुड्स देर आर 5 थिंग्स. ना आफ्टर गुड्स हम लोग का जो डेफिनेशन है वो है इम्पोर्टेड गुड्स. ना व्हाट डू यू मीन बाय इम्पोर्टेड गुड्स? लिखो गुड्स ब्रॉट इनटू. तो इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स विच आर ब्रॉट इनटू इंडिया. गुड्स which are brought into India but does not include goods which have been cleared for home consumption. Goods which have been cleared for home consumption. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सी, जब आप इंपोर्ट करते हो, वेन एवर यू आर इम्पोर्टिंग एनी गुड्स एंड दोज गुड्स डायरेक्टली, समझो यू आर द मैन्युफैक्चरर. ठीक है, आपको ये मार्कर मैन्युफैक्चर करना है. सो फॉर दिस मार्कर यू हैव ऑर्डर्ड द प्लास्टिक विच इज गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम से यूएस. तो यूएस से ये इंपोर्ट होने वाला है प्लास्टिक. सो यू आर द इम्पोर्टर इन इंडिया, द पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग. सो यू आर द इम्पोर्टर. नाउ जब गुड्स आएगा तो वो डायरेक्टली आपके फैक्ट्री पे नहीं आएगा. वो कहाँ पे जाता है? पहले कस्टम स्टेशन में जाता है. फिर कस्टम स्टेशन के बाद वहाँ से यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी. यू विल पे कस्टम ड्यूटी. उसके बाद ही वो गुड्स क्या होंगे? वहाँ से दे विल बी रिमूव फ्रॉम द कस्टम स्टेशन. दे विल बी रिमूव एंड देन दे विल बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. तो क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन मतलब क्या? होम कंजम्पशन मीन्स व्हाट? होम कंट्री. फॉर कंजम्पशन, होम कंजम्पशन मीन्स फॉर कंजम्पशन इन होम कंट्री. कंजम्पशन मीन्स यूसेज. फॉर यूसेज इन होम कंट्री. होम कंट्री मतलब क्या? जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है तो वो कंट्री के अंदर क्या हो जाएगा? इट विल बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. सो वंस यू पे द कस्टम ड्यूटी इट विल बी क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. Understood? But imported goods does not include. Imported goods does not include goods which have been cleared for home consumption. Understood? अब इसमें एक स्टार पॉइंट करके लिख दो. Importation to start. Importation will start. Importation to start when goods enter the territorial waters. Importation will start when goods enter the territorial waters, but taxable event is reached. But taxable event is reached when goods crosses the custom frontiers. When goods crosses the customs frontiers, that is cleared for होम कंजम्पशन. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज वन फैक्ट्री. यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फैक्ट्री इन यूएस. यहाँ पे एक फैक्ट्री है. ठीक है, ये फैक्ट्री है यूके में लेते हैं. ठीक है, यूके के अंदर ये एक फैक्ट्री है. यहाँ से मैं गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ इंडिया के अंदर. ओके, सो यहाँ से टिल हियर दिस इज इम्पोर्टर्स फैक्ट्री.
importers factory which is in India. ठीक है, तो मैंने यूके से गुड्स मंगाए कहाँ पे, इंडिया के फैक्ट्री में. सो यहाँ पे इंपोर्टर है और मैं यहाँ से गुड्स मंगा रही हूँ. बट गुड्स डायरेक्टली आएंगे क्या यहाँ पे? नो, दे हैव टू गेट एट दी कस्टम स्टेशन. तो समझो यहाँ से वो निकले, यहाँ के फैक्ट्री से निकले. अब बीच में पहुंचते पहुंचते सबसे पहले क्या लगेगा उनको? यूके का पोर्ट लगेगा. से यहाँ से जब आए ना, दैट टाइम इट वेर 100 यूनिट्स. 100 units were loaded in the vessel. When they reached at UK port, क्योंकि यूके से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब वहां का भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा. सो हियर 100 यूनिट्स में से समझो एक यूनिट गिर गया, तो अभी यहाँ पे पहुंचे 99 यूनिट्स. 100 यूनिट्स से पहुंचते पहुंचते यूके पोर्ट पहुंचते पहुंचते 99 यूनिट्स हो गए. ठीक है, नाउ इन दिस केस वो वहां से निकलेंगे, गुड्स निकलेंगे, तो समझो मुंबई पोर्ट पहुंचे. नाउ यूके से निकले, फिर यहाँ पे दिस इज द टेरिटोरियल वाटर्स. दिस इज टेरिटोरियल वाटर्स. ओके, एंड फिर मुंबई पोर्ट पहुंचते पहुंचते 99 यूनिट्स यूके पोर्ट पे थे, फिर वेसल में थे, फिर वेसल में यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स, यहाँ पे पानी में वापस एक यूनिट गिर गया, तो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स पहुंचे, तभी यहाँ पे 98 यूनिट्स थे. यहाँ पे 98 यूनिट्स थे. एंड फिर यहाँ पे आया मुंबई पोर्ट. तो ऐसा नहीं है कि मुंबई पोर्ट से दूर है थोड़ा टेरिटोरियल वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स का स्ट्रेच है ना. तो यहाँ पे आए एंड यहाँ पे पहुंचते पहुंचते दिस इज मुंबई पोर्ट. तो मुंबई पोर्ट पहुंचते पहुंचते से 97 यूनिट्स ओनली लेफ्ट. एंड मुंबई पोर्ट से इंपोर्टर के फैक्ट्री तक पहुंचते पहुंचते 96 यूनिट्स लेफ्ट. ओके, सी जब स्टार्ट किया था तो वेसल में कितना लोड किया था? 100 यूनिट्स. आफ्टर दैट व्हेन इट रीच यूके पोर्ट तो कितने पहुंचे? 99 यूनिट्स, मतलब बीच में कुछ तो भी एक यूनिट मिसप्लेस हो गया. नाउ फ्रॉम देयर जब निकले तो टेरिटोरियल वाटर्स पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? 98 यूनिट्स. एंड वहां से हम मुंबई आते आते कितने हो गए? मुंबई पोर्ट आते आते 97 यूनिट्स. अब क्या लिखा हम लोग ने? Importation to start when goods enter the territorial waters. तो गुड्स जब टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर होंगे, यहाँ पे इंपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा. मतलब जैसे ही गुड्स, यहाँ पे कितने गुड्स आए? 98 गुड्स आए. दिस मीन्स 98 गुड्स आर इम्पोर्टेड. इम्पोर्ट कितने हो गए? 98 गुड्स. मतलब यहाँ से इंपोर्टेशन स्टार्ट होगा. सो दिस इज द प्लेस where custom duty is leviable. Custom duty is leviable. Okay, this is the place where custom duty is leviable. अब ये जो आ रहे थे तो बीच में ये टेरिटोरियल वाटर्स में भी आए थे तो 98 यूनिट्स आ, लेकिन मुंबई पोर्ट पहुंचते पहुंचते कितने यूनिट्स हो गए? 97 यूनिट्स. 1 यूनिट गॉट मिसप्लेस्ड इन बिटवीन. तो वो केस के अंदर मैं ड्यूटी कितने यूनिट्स पे भरूंगी? ऑन 97 यूनिट्स. बिकॉज यहां से क्लियर फॉर होम कंजम्पशन कितना होगा? हाउ मच गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, मतलब कितने गुड्स क्लियर होंगे फॉर यूज इन माई होम कंट्री? 97 यूनिट्स. ओके, सो हियर इन दिस केस custom duty will be payable. Custom duty will be payable on 97 units. Understood this point? Okay, your customs will start, importation will start when goods enter the territorial waters, but custom duty is payable on goods which cross the custom frontiers. तो custom frontiers मतलब क्या है? ये मुंबई पोर्ट. अब मुंबई पोर्ट से जितने गुड्स क्लियर करेंगे उतनों का ही
मुंबई पोर्ट, फिर समझो मुंबई पोर्ट से 97 गुड्स निकल गए, लेकिन फैक्ट्री था समझो राजस्थान में, तो मुंबई से राजस्थान बाय व्हीकल बाय ट्रक गए और बीच रास्ते में एक यूनिट गिर गया एंड पहुंचा इंपोर्टर के फैक्ट्री में, पहुंचा सिर्फ 96 यूनिट्स, बट स्टिल इंपोर्टर हैज टू पे ऑन 97 यूनिट्स की कस्टम्स में से क्लियर कितने यूनिट्स हुए 97 यूनिट्स, देन ही हैज टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन 97 यूनिट्स. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस मैम. यस. चलो ये एग्जाम्पल भी नोट कर लेना तो याद रहेगा जब पढ़ोगे तभी. डन राइटिंग? यस मैम. ये हो गया इंपोर्टेड गुड्स. नेक्स्ट यू टेक एक्सपोर्टेड गुड्स. नेक्स्ट जो भी नंबर है 7th ना. ओके, एक्सपोर्टेड गुड्स. अब एक्सपोर्टेड गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स टू बी टेकन आउटसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. बट एक्सपोर्ट के अंदर क्या आएगा? एक्सपोर्ट इज सेड टू बी ओवर. Export is said to be over when goods crosses the territorial water limits. When goods crosses the territorial वाटर्स लिमिट. ठीक है, जब गुड्स क्लियर करेंगे. अभी समझो देर इज वन फैक्ट्री इन पुणे. देर इज वन फैक्ट्री इन पुणे. ओके, नाउ जब हम लोग को एक्सपोर्ट करना है तो से देर वेर 100 यूनिट्स विच वेर टू बी एक्सपोर्टेड. नाउ दीज गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड टू से एट कस्टमर्स फैक्ट्री यूके. कस्टमर्स फैक्ट्री विच इज इन यूके. ठीक है, सप्लायर का फैक्ट्री कहाँ पे है? पुणे में. नाउ फ्रॉम पुणे 100 यूनिट्स आर टू बी एक्सपोर्टेड टू कस्टमर्स फैक्ट्री. अब जाते जाते पहले क्या आएगा? मुंबई पोर्ट. पुणे से गुड्स निकलेंगे तो पहले कहाँ पे जाएंगे? मुंबई पोर्ट. अब सोचो मुंबई पोर्ट पहुंचते पहुंचते 99 यूनिट्स हो गए. मुंबई पोर्ट से हियर इट इज 99 यूनिट्स. ओके, इसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स आएगा. हियर दिस इज द टेरिटोरियल वाटर्स. अब पोर्ट से टेरिटोरियल वाटर्स जाते जाते 98 यूनिट्स हो गए. 98 यूनिट्स. ठीक है, एंड टेरिटोरियल वाटर्स के बाद आएगा यूके पोर्ट. यहाँ पे आएगा यूके पोर्ट 97 यूनिट्स एंड गुड्स पहुंचे से 96 यूनिट्स. ओके, तो यहाँ पे when is the export said to be completed? When goods crosses the territorial waters. तो territorial waters से कितने गुड्स क्लियर हुए? 98 यूनिट्स. So here export is leviable on 98 यूनिट्स. इंपोर्ट करने के टाइम इंपोर्ट ड्यूटी पे होगा जब टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करेगा तब इंपोर्ट ड्यूटी पे होगा. बट कितने गुड्स पे? जितना क्लियर हुआ है फॉर होम कंजम्पशन. ठीक है, मतलब कस्टम्स के पोर्ट से जितना क्लियर हुआ है उतने पे ही ड्यूटी पे होगा. बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट जितना टेरिटोरियल वाटर्स में से क्लियर हुआ है उसके ऊपर ड्यूटी पे होगा.
अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. यस, लिख लो नोटबुक में. हो गया लिख के? Yes, ma'am. No, ma'am. Oh. This is export leviable on 98 goods. Yes, ma'am. Done? Okay, so this was about import and export of goods. Next is prohibited goods. Prohibited goods. तो prohibited goods मतलब क्या? Goods whose import, goods whose import or export is prohibited or subject to certain restrictions or conditions. Okay, what do you mean by prohibited goods? Goods whose import or export is prohibited. Prohibited मतलब क्या? Restricted और subject to certain restrictions और conditions. उसके लिए कुछ तो भी conditions या restrictions है. वो conditions या restrictions fulfill करने के बाद ही you can import or export of these goods. Who has done these conditions and restrictions? Government has levied certain conditions and restrictions. After fulfillment only you can import or export of those goods. Okay, so it will be allowed only after the fulfillment of, it will be allowed only after the fulfillment of those conditions or restrictions. ठीक है, जैसे कि कुछ केमिकल्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, प्लांट्स हो गए. Plants are there. Even birds, animals, these are prohibited. Birds भी prohibited है. लेकिन उसके लिए कुछ conditions या restrictions है. जैसे बहुत सारे बर्ड्स जो लोग पैरेट्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक पैरेट्स मतलब जो लोग केज में रखते हैं, वो केज के पैरेट्स का फॉरेन में जो है उनका उसका आधार कार्ड इन द सेंस, अब जैसे अपना यहाँ पे आधार कार्ड रहता है वैसे पैरेट्स का भी वहाँ पे एक कार्ड रहता है. मतलब वो पैरेट का नाम, उसका बर्थ कब का है, ब्रीड कौन सा है. तो ऑल दोज इफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर ऑफ पैरेट, देन ओनली दोज पैरेट्स आर इम्पोर्टेड. यू कैन इम्पोर्ट दोज पैरेट्स, otherwise you can't import those parrots. So all these are certain. So if without fulfilling that condition if I am importing, तो वो क्या हो जाएगा? Prohibit हो जाएगा, restrict हो जाएगा. I can't import those goods, or any chemical stuff is there, any plants are there, so you cannot import. Okay, this was prohibited goods. Next is right, smuggling of goods. Smuggling goods. अब स्मगलिंग गुड्स मतलब क्या? इट इंक्लूड्स फर्स्ट, इट इंक्लूड्स improper importation or improper exportation.
इम्प्रॉपर इम्पोर्टेशन और इम्प्रॉपर एक्सपोर्टेशन। या तो आप गलत तरीके से इंपोर्ट कर रहे हो या गलत तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्मगलिंग। लेकिन गलत तरीके से इंपोर्ट क्यों कर रहे हो, व्हाट आर द रीजंस? रीजंस कुड बी से इवेजन ऑफ ड्यूटी, you want to evade the duty, you want to escape the duty, that's why you are doing improper importation. Okay, or you want to evasion of prohibition, evasion of prohibition, evasion of prohibition मतलब क्या, the goods which you want to import एंड उसके ऊपर कुछ प्रोहिबिशन है, सो टू एस्केप दिस प्रोहिबिशन एंड you are importing, then it will be considered as smuggling of goods. Understood? जैसे कि for example parrots. Now for parrots there are certain conditions that if you want to import the parrot, they should have a card over there. Their identification card should be there. Now because of this identification card, the cost of parrot is increasing. That's why you thought that you will escape this procedure, you will escape this procedure of this making identification card of those parrots. So you escape, you evade that prohibition and still you are importing, then it will be called as smuggling of goods. Understood? So what is smuggling of goods? Improper importation or improper exportation. What is smuggling of goods? Improper importation or improper exportation. But improper importation क्यों कर रहे हो? What could be the reasons? Apart from this also could be many reasons. But what could be the main reasons? Evasion of duty or evasion of prohibition. ठीक है? And export. तो export क्यों कर रहे हो? और improper exportation, improper exportation. तो अभी exportation क्यों गलत तरीके से कर रहे हो? तो what could be the first reason? It could be not satisfied with the benefits, not satisfied with the benefits or to get the additional benefits. ओके, द गुड्स दैट यू एक्सपोर्ट, उसके ऊपर ड्यूटी नहीं है अदर देन जो एकदम इम्पोर्टेंट जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह रहेगा, उसके ऊपर टोबैको वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हो, सिगरेट्स वगैरह, तो उसके ऊपर ही ड्यूटी है. उसके अलावा मोस्टली एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी नहीं है. एंड उल्टा यू गेट द बेनिफिट्स, मतलब ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिलता है. अगर एक्सपोर्ट किया ना तो उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह मिलता है. तो वो सारी चीज़ें हैं. तो इधर you are not satisfied with the benefits that you are getting or you want to get additional benefits. So this could be the reason where you are doing improper exportation, where you are doing improper exportation, and or where the or to export prohibited goods. The goods that are prohibited, you want to export those goods, मतलब जिसके ऊपर कुछ restrictions है, so you want to evade those restrictions and then you want to export these goods. So this could be the reason where you adopt the false means, false ways for the improper exportation. Understood? So what could be the reason? First is prohibited goods, second one is smuggling of goods. Prohibited goods मतलब क्या? On which there are certain conditions or restrictions. Only after you fulfill those conditions or restrictions, you will be allowed to import or export. And smuggling में क्या है? Improper importation or improper exportation. What could be the reasons of improper? It could be evasion of duty or evasion of prohibition. And improper exportation could be not satisfied with the benefits or to get the additional benefits. Understood this much? Yes, ma'am. Yes. Done writing, everyone? Yes, is anyone writing?
No, ma'am. You have any lecture after this? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So done. Next, give heading warehouse. What is the definition of warehouse? So it means the public licensed warehouse. Okay. Warehouse मतलब क्या? Normal कोई भी warehouse नहीं चलेगा. तो warehouse it includes the public licensed warehouse. Public licensed warehouse, or you can say private warehouse or private warehouse. Private warehouse भी चलेगा, but which is licensed. Private warehouse भी चलेगा, but which is licensed under section 58. ये जब भी हम लोग warehouse वाला चैप्टर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे कि सेक्शन 58 में क्या है. ठीक है. और यू कैन से स्पेशल warehouse अंडर सेक्शन 58A. ओके. ये जब वेयरहाउस करेंगे तभी पढ़ेंगे उसमें. तो वेयरहाउस मतलब क्या? गुड्स. पब्लिक लाइसेंस वेयरहाउस. पब्लिक लाइसेंस वेयरहाउस मतलब क्या? गवर्नमेंट वेयरहाउसेस. तो गवर्नमेंट वेयरहाउसेस और प्राइवेट वेयरहाउस भी चलेगा, बट इट शुड बी लाइसेंस्ड अंडर सेक्शन 58 एंड उसके अलावा स्पेशल वेयरहाउस अंडर सेक्शन 58A. अंडरस्टूड दिस मच? ओके. एंड नेक्स्ट इज वेयरहाउस्ड गुड्स. वेयरहाउस्ड गुड्स मतलब क्या? वेयरहाउस्ड गुड्स. तो सिंपल डेफिनेशन, गुड्स दैट आर वेयरहाउस गुड्स मतलब क्या? गुड्स विच आर डिपॉजिटेड इन अ वेयरहाउस. ठीक है. द गुड्स दैट यू डिपॉजिट इन वेयरहाउस दे आर कॉल्ड एज वेयरहाउस्ड गुड्स. ओके. लिख लिया इतना? नेक्स्ट इज important is foreign going vessel. Okay, next is foreign going vessel, or you can say aircraft. तो फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेसल या एयरक्राफ्ट जो गुड्स या पैसेंजर्स को कवर करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द पोर्ट्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया एंड एनी पोर्ट दैट इज आउटसाइड इंडिया. Okay, the vessel or the aircraft which travels, which carries with them any goods or any passengers, कहाँ से? From a port in India to any port which is outside India. अगर समझो अभी जैसे यहाँ से everyone knows मुंबई से गोवा के लिए शिप जाता है, पता है? अजंता करके बोट है, अजंता ही है शायद से उसका नाम. तो दैट इज फ्रॉम मुंबई. नाउ ये समझो ये इंडिया का मैप है. ठीक है. दिस इज इंडिया का मैप. नाउ हियर इट इज मुंबई एंड हियर इट इज गोवा. ठीक है. तो अब जो बोट है ना, जो वेसल, वो मुंबई से गोवा जाता है बाय वाटर, मतलब बाय शिप ऑल्सो यू कैन गो फ्रॉम मुंबई टू गोवा. ओके. तो ये जो है दिस इज वेसल ही है, बट इट इज कैरिंग पैसेंजर्स ऑल्सो, बट इट इज कैरिंग फ्रॉम अ पोर्ट इन मुंबई to a port in Mumbai to port in Goa. That means from a port in India to a port in India. Then this is not a foreign going vessel. Okay. So what is foreign going vessel? Any vessel or aircraft
जो क्या करेगा, इट कैन कैरी गुड्स और पैसेंजर्स, कैरी गुड्स और पैसेंजर्स। कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन एनी पोर्ट और एयरपोर्ट। मतलब वेसल है तो कहाँ पे जाएगा, पोर्ट पे, एयरक्राफ्ट है तो कहाँ पे जाएगा, एयरपोर्ट पे। तो पोर्ट और एयरपोर्ट इन इंडिया, ओके, एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, एंड एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, वेदर दे आर टचिंग एनी इंटरमीडियरी लोकेशन और नॉट। मतलब अगर समझो यहाँ से उसको फॉरेन में कोई प्लेस पे जाना है एंड बीच में अगर वो कोई दूसरे फॉरेन प्लेस पे रुकता है, देन ऑल्सो इट डजेंट मैटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन गोइंग वेसल। वंस इट क्रॉसेस द पोर्ट इन इंडिया एंड उसका जो डेस्टिनेशन है इट इज एनी अदर प्लेस, एनी अदर पोर्ट और एयरपोर्ट विच इज आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉरेन गोइंग वेसल। Understood? And it includes तो क्या क्या इंक्लूड करेगा फॉरेन गोइंग वेसल? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर इज एनी नेवल वेसल बट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है, एनी नेवल वेसल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट who is taking part in any naval exercise, taking part in any नेवल एक्सरसाइजेस। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर हम लोग ने कोई नेवल एक्सरसाइजेस रखा, ठीक है, मतलब कुछ भी कोई टेस्टिंग के लिए रहेगा या कोई भी तरह का नेवल एक्सरसाइज, नेवल मीन्स नेवी का एक्सरसाइज रखा, एंड उस नेवी के एक्सरसाइज के लिए अगर हम लोग किसको बुलाते हैं, कोई फॉरेन से वेसल आया है, ठीक है, फॉरेन से कोई शिप आया है एंड अब वो वेसल यहाँ से जा रहा है, तो वो यहाँ पे क्यों आया था, कुछ गुड्स लेके आया था, कुछ पैसेंजर्स लेके आया था, नहीं, दैट वाज नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। फॉरेन का नेवी का वेसल था जो इंडिया के किसी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आया था। वो एग्जीबिशन भी हो सकता है, वेसल्स का एग्जीबिशन हो सकता है, तो वो वहां से यहाँ पे आया था, नेवी का वेसल, फॉरेन के नेवी का वेसल इंडिया में आया था फॉर टेकिंग पार्ट। नाउ दिस वेसल इज गोइंग बैक, तो इट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज फॉरेन गोइंग वेसल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, एनी vessel which is engaged in fishing or any other operations, engaged in fishing or any other operations which is outside the territorial waters of India, outside the territorial waters of India। अभी समझो ये इंडिया है, this is India। Now from India up to 12 nautical miles, here say here this is territorial waters, up to 12 nautical miles, here it is territorial waters। After 12 nautical miles up to here 108 nautical miles up to here, this is also India but only certain part of India, only certain part is India। तो समझो ये जो मैंने सर्कल किया है ना, सिर्फ इतना ही इंडिया है, सिर्फ इतना ही इंडिया है। उसके बाद शिप जो था वो इंडिया का था, शिप जो था वो इंडिया का था, बट इट वेंट फॉर शिपिंग पर्पस, फॉर फिशिंग पर्पस, फिशिंग के लिए गया। कहाँ पे गया, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद।
तो अब 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, लेकिन यहाँ पे नहीं गया, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर हो, यहाँ का तो पूरा पानी इज इंडिया, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एवरी वाटर इज इंडिया, बट आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स इफ इट इज गोइंग देन ओनली सर्टेन पार्ट इज इंडिया. अब फिशिंग के लिए जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे जाएगा, इट कैन गो अप टू एनी वाटर. सो इन दैट केस वंस इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर्स, इवन दो इट इज अवर वेसल मतलब इंडिया का वेसल है, even though it is India's vessel, it crosses the territorial waters, it will be called as foreign going vessel. हम लोग ने क्या लिखा है, it includes, मतलब ये तो है, इसके अलावा ये चीजें भी foreign going vessel में आती है. Understood this much? Okay, and next third part is here, any vessel or aircraft, any vessel or aircraft which is proceeding to a place outside India for any purpose. Which is proceeding a place outside India. कहाँ पे जा रहा है, place outside India for any purpose, it will be called as foreign going vessel. Understood? So what is foreign going vessel? A vessel or an aircraft which is going, which is carrying goods or passengers with them from a port or airport which is in India to a port or airport which is outside India, and it also includes 1, 2 and 3. One is any naval vessel which is of foreign government but which has come to India for taking part in naval exercise. Now it is going back, then it will be called as foreign going vessel. Second is any vessel which is engaged in fishing or other operations but which is outside the territorial waters. कहाँ पे है वो, outside the territorial waters. And third is any vessel or aircraft which is proceeding to a place outside India. Understood this much? मैम ये वाला पॉइंट नंबर 11 है ना? बेटा मेरे को नंबर नहीं याद है अभी, इसलिए मैंने लिखा नहीं कौन सा नंबर है डेफिनेशन. यस 11 ही है. 11 ही है. 11 है ना. हाँ. हो गया लिख के? यस ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग दो. ठीक है. नेक्स्ट दे दो हेडिंग 12 ना, कस्टम स्टेशंस. कस्टम स्टेशंस तो क्या रहते हैं कस्टम स्टेशंस, मतलब क्या, इट इंक्लूड्स, पहले तो हम लोग ने वो जो लिखा था ना वेसल एयरक्राफ्ट या व्हीकल, तो उसमें क्या क्या था, कस्टम स्टेशन लिखा था हम लोग ने. वेसल कहाँ पे आता है, पोर्ट पे, मतलब कस्टम्स पोर्ट. फिर एयरपोर्ट कहाँ पे, ये एयरक्राफ्ट कहाँ पे आता है, कस्टम्स एयरपोर्ट. ठीक है. एंड व्हीकल कहाँ पे आता है, लैंड कस्टम स्टेशन. बराबर, लैंड कस्टम स्टेशन. तो ये 3 चीजें तो रहेंगी. इसके अलावा क्या रहता है और कस्टम स्टेशन के अंदर, इट इज फॉरेन पोस्ट ऑफिस. फॉरेन पोस्ट ऑफिस. ठीक है. एंड 5th इज इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल. तो कस्टम स्टेशन में क्या क्या चीजें आती है, पहला तो जो 3 हम लोग ने पहले वाले डेफिनेशन में किया था वो, वेसल कहाँ पे आएगा, कस्टम्स पोर्ट. एयरक्राफ्ट कहाँ पे आएगा, कस्टम्स एयरपोर्ट. एंड व्हीकल कहाँ पे आएगा, लैंड कस्टम स्टेशंस. उसके अलावा और 2 चीजें भी
कस्टम स्टेशन में आती है, मतलब फॉरेन पोस्ट ऑफिस एंड इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टम्स एरिया 13। ये कस्टम स्टेशन हो गया कि यहाँ ये जगह जो है वो कस्टम स्टेशन मानी जाएगी। बट अब कस्टम्स एरिया क्या होता है? कस्टम्स एरिया, तो कस्टम्स एरिया मतलब क्या? दैट इट इज अ एरिया ऑफ अ कस्टम स्टेशन, एरिया ऑफ अ कस्टम स्टेशन और वेयर हाउस, कस्टम स्टेशन का या जो भी वेयर हाउस आएगा वो। एंड इट इंक्लूड्स एनी एरिया इन विच इम्पोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स, जहाँ पे भी तुम रखते हो कस्टम अथॉरिटीज के हिसाब से, तो एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन और वेयर हाउस। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स any area in which the imported goods or exported goods are kept, जहाँ पे भी तुम रखते हो बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटीज, बिफोर क्लियरेंस बाय कस्टम अथॉरिटीज। ठीक है। अब अगर समझो कि इतना बड़ा जो है, इफ दिस इज योर कस्टम स्टेशन, तो जहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं एयरक्राफ्ट का, तो जो भी गुड्स एयरक्राफ्ट के अंदर आते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी गुड्स आते हैं भर भर के, तो वो जो एयरक्राफ्ट रहेंगे वो अलग उनका स्टैंड रहेगा, ये कस्टम स्टेशन। अब कस्टम स्टेशन में कहीं पे भी एयरक्राफ्ट लैंड नहीं होगा, उसके लिए रनवे लगेगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द पैच विच इज रिजर्व्ड फॉर द रनवे, दिस इज द पैच रिजर्व्ड फॉर द रनवे एंड दिस इज द पैच वेयर गुड्स विल बी केप्ट, मतलब एयरक्राफ्ट में जो गुड्स आएंगे वो गुड्स हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कस्टम्स एरिया, कस्टम्स एरिया। आया समझ में? तो कस्टम एरिया इज अ पार्ट ऑफ कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन लार्जर पिक्चर, कस्टम स्टेशन के अंदर गुड्स भी रहेंगे, एयरक्राफ्ट भी रहेंगे, मतलब गुड्स भी आएंगे, कन्वेयंस भी आएंगे, फिर उनका जो भी स्टोर करने का जगह रहेगा वो भी सब कुछ रहेगा, ऑफिस रहेगा कस्टम स्टेशन में। तो कस्टम स्टेशन इज अ लार्जर पिक्चर, वो लार्जर पिक्चर के अंदर क्या फिट होता है? कस्टम्स एरिया। अंडरस्टूड? ओके। वो जो लार्जर पिक्चर है उसमें क्या रहेगा? देयर विल बी अ कस्टम्स एरिया, जहाँ पे गुड्स रखे जाएंगे, इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्टेड गुड्स कस्टम्स एरिया में रखे जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, हो गया लिख के? ओके, सो दीज वर सम ऑफ द डेफिनेशंस, जो भी मेन डेफिनेशंस है वो सब हम लोग ने कवर कर लिए। ओके, कौन से किया? सबसे पहला कौन सा डेफिनेशन था? इंडिया, फिर इंडियन कस्टम वाटर्स, फिर उसके बाद गुड्स का डेफिनेशन था, फिर गुड्स के अंदर ही हम लोग ने 4-5 डेफिनेशंस कवर कर लिए, फिर उसके बाद प्रोहिबिटेड गुड्स, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, वेयर हाउस, फिर वेयर हाउस गुड्स क्या होते हैं, देन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, व्हाट इज इम्पोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट, एंड फॉरेन गोइंग वेसल, कस्टम स्टेशन एंड कस्टम एरिया। ओके एवरीवन? यस, ब्रेक चाहिए कि नहीं? चलेगा आज?
चाहिए 5 मिनट का. हाँ, इट्स एक सेकेंड ऐड होगा. There will be one accessible value under section 14. Now in this accessible value what will be added? Basic custom duty. सबसे पहली चीज जो ऐड होगी that will be add basic custom duty. क्या ऐड होगा इसके अंदर? बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड होगा. उसके बाद इफ देर इज एनी काउंटर वेलिंग ड्यूटी दिस विल बी कैलकुलेटेड. बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा? अगर मैं इसको ए नाम देती हूँ, ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा? ऑन ए. ठीक है, किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा? जो ए है, असेसेबल वैल्यू है, उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होगा. परसेंटेज दिया रहेगा. बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड और असेसेबल वैल्यू. आफ्टर दिस, आफ्टर एडिंग द असेसेबल वैल्यू यू विल ऐड, एंड दिस जो बेसिक कस्टम ड्यूटी रहेगा उसको हम बी नाम दे देते. ओके, नेक्स्ट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी. इफ देर इज एनी काउंटर वेलिंग duty, it is also called as CVD. Okay, now CVD will be calculated on A plus B. जो assessable value plus basic custom duty जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर CVD का परसेंटेज लगेगा. Okay, so here I'll write on, it is calculated on A plus B. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सी. समझ में आ रहा है? सबसे फर्स्ट क्या रहेगा? असेसेबल वैल्यू. इन दैट वी विल ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी. आफ्टर एडिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी दिया रहेगा. अगर क्वेश्चन में दिया है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो रहेगा ही. दिस काउंटर वेलिंग ड्यूटी इफ इट इज गिवन इन एग्जाम, इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन, देन यू विल ऐड. After this you will add social welfare surcharge. ओके, ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है इसके जगह पे पहले था हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस. ओके, कस्टम ड्यूटी में पहले था हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस. नाउ इंस्टेड ऑफ हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस इन 2018, 17 या 18 में वो हटा के सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेके आए, जिसको हम लोग बोलेंगे SWS. क्या बोलेंगे? सोशल वेलफेयर सरचार्ज. नाउ दिस इज कैलकुलेटेड ऑन बी. दिस इज कैलकुलेटेड ऑन बी, मतलब इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी. सोशल वेलफेयर किसके ऊपर चार्ज होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी. ड्यूटी के ऊपर चार्ज होगा. सिर्फ जो ये बी वाला अमाउंट है ना, सिर्फ ये जो बी वाला अमाउंट है इसके ऊपर ही चार्ज होगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज. ओके, ठीक है, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर चार्ज होगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज. इसको हम नाम दे देते हैं डी. ओके, अब ये सब चीजें ऐड करने के बाद यू विल गेट अ फिगर. एक कुछ तो भी अमाउंट मिलेगा. ठीक है, आफ्टर एडिंग दिस यू विल गेट सर्टेन अमाउंट. अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे देयर आर मोर एडिशनल ड्यूटीज. देयर आर मोर एडिशनल ड्यूटीज. तो उसमें वी कैन ऐड, देयर इज कॉल्ड एज सेफगार्ड ड्यूटी. ठीक है, इसका परसेंटेज एंड किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन. दिस विल बी गिवन इन क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ई. ओके, इसके बाद लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी. एंटी
dumping duty. This will also be given in question. इसको हम नाम दे देते हैं F. ठीक है. एंड इसके बाद ऐड होगा एंटी सब्सिडी ड्यूटी. एंटी सब्सिडी ड्यूटी. दिस विल ऑल्सो बी गिवन इन क्वेश्चन. मतलब कितना परसेंटेज है और किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा. दिस विल बी कॉल्ड एज जी. ठीक है, ये आ जाए ये सब. और ये 3 आफ्टर एडिंग दीज 3 ड्यूटीज यू विल गेट वन मोर फिगर. ओके, वी कॉल इट इज एज एफ, मतलब AGH. एक फिगर मिलेगा. ये सब ड्यूटीज ऐड करने के बाद एक फिगर मिलेगा. आफ्टर दिस यू विल ऐड IGST. ओके, आफ्टर दिस यू विल ऐड IGST. हम लोग ने किया था ना जब व्हेन वी वर डूइंग GST, तब मैंने बोला था कि इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगता है एंड IGST भी लगता है. सो हियर इट इज IGST. So it is custom duty, IGST under section 3 subsection 7. ये किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा? This will be on H. H के ऊपर ये सब जो भी ऐड होके आएगा ना, फिर H आएगा. H के ऊपर IGST का परसेंटेज लगेगा. ओके, एंड इसके बाद लगेगा कंपेंसेशन सेस. After this it will be compensation cess under section 3 subsection 9. This will also be calculated on H. H के बाद इसको हम लोग नाम दे देंगे I एंड इसको नाम दे देंगे J. तो जो फाइनल अमाउंट रहेगा that will be your H plus I प्लस J. ठीक है, दिस विल बी द टोटल अमाउंट पेबल. अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल अमाउंट उसको कितना भरना है, असेसेबल वैल्यू, बट अगर टोटल ड्यूटीज का टोटल करने बोले तो दिस इज द टोटल अमाउंट. दिस इज द टोटल अमाउंट पेबल. बट इफ आई टेल यू टू ऐड द ड्यूटीज, तो ड्यूटीज कौन से है इसके? हाउ मच आर द ड्यूटीज हियर? ड्यूटी पहले तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी. फर्स्ट इज दिस बेसिक कस्टम ड्यूटी. नेक्स्ट इज काउंटर वेरिंग ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड एंटी सब्सिडी ड्यूटी, IGST एंड कंपेंसेशन सेस. अंडरस्टूड? दिस इज द ओवरव्यू. दिस इज द ईगल पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो हम लोग ने टाइप्स ऑफ ड्यूटी है, अब इस ये एक एक ड्यूटी को डिटेल में डिस्कस करना है. ठीक है, लिख लिया इतना? ओके, सो फर्स्ट इज, सबसे फर्स्ट क्या है? असेसेबल वैल्यू, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट करना है. विच इज द फर्स्ट ड्यूटी दैट यू विल कैलकुलेट? You will calculate basic custom duty. It will be calculated on assessable value on A. It will be calculated on A. उसको हम लोग ने नाम दे दिया B. उसके बाद if there is countervailing duty, then it will be added on A plus B. उसके बाद social welfare surcharge. तो social welfare surcharge किसके ऊपर चार्ज होगा? On basic custom duty. It will be 10%. 10% of basic custom duty. जनरली इट इज 10%, बट अगर क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो हम लोग क्वेश्चन का परसेंटेज लेंगे. बट अगर क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया है तो 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी. ठीक है, ये हो गया सोशल वेलफेयर सरचार्ज. उसके बाद देयर आर सर्टन एडिशनल ड्यूटीज. देयर इज सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी सब्सिडी ड्यूटी. दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस. वो सब ऐड करने के बाद यू विल गेट वन फिगर. हियर यू विल गेट वन फिगर H. सब कुछ ऐड करने के बाद आफ्टर एडिंग उसके ऊपर IGST. लास्ट में कौन से 2 ड्यूटीज ऐड होंगे? IGST एंड कंपेंसेशन सेस.
Okay, and next with that this will be the total amount payable. Done everyone writing? Yes, ma'am. Is anyone writing? No, ma'am. So now these duties we have to discuss in detail. सिंपल सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ओके, सो फर्स्ट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी. अब बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लोगे? फर्स्ट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी. गिव फर्स्ट हेडिंग. बेसिक कस्टम ड्यूटी. अब बेसिक कस्टम ड्यूटी क्यों पे किया जाता है? इट इज अ जनरली अ परसेंटेज ऑफ वॉट एवर द अमाउंट इज गिवन. जो भी आपका असेसेबल वैल्यू है उसका परसेंटेज है. ओके, इट इज अ परसेंटेज ऑफ, राइट डाउन, इट इज अ परसेंटेज ऑन assessable value. Okay, it is a percentage on assessable value. Now these can be two. This can be standard and preferential. Preferential मतलब क्या कि for example now there अभी जैसे मोदी जी कितने फॉरेन टूर्स वगैरह करते हैं. Now if they when they have done a tour with say Nepal, and if they say कि Nepal is their preferential state, if they say Nepal is their preferential state, तो अगर मैं उनके साथ इंपोर्ट करती हूँ तो मेरे को बेसिक ड्यूटी प्रेफरेंशियल रेट पे लगेगा. ओके, प्रेफरेंशियल मतलब क्या कि वी प्रेफर ऑफ डूइंग बिजनेस विद दोज स्टेट्स. सो यू विल हैव टू रेट्स हियर. You will have standard rate or you will have preferential rate. Okay, either you will have standard rate or you will have preferential rate. Preferential rate is for what? It is for preferential areas. That is, if the government has declared any areas as preferential, then it will be the prefer. तो वो states के लिए हम लोग को कौन सा rate applicable हो जाएगा? Preferential rate. Okay, मतलब for example, normally if I am doing import, then it is 10%. For example, if I want to import से क्या टॉयज इंपोर्ट करना है, तो वो टॉयज अगर मैं कहीं और से मंगाऊंगी देन इट इज 10%. बट इफ आई इम्पोर्ट इट फ्रॉम नेपाल देन इट इज 7%. तो ही अदरवाइज इट इज 10% एंड फ्रॉम नेपाल इट इज 7%. सो दैट इज द प्रेफरेंशियल रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो प्रेफरेंशियल रेट जनरली कम रहता है. एंड ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो कौन से दिन का लेने का? बेसिक कस्टम ड्यूटी. तो इन केस ऑफ इम्पोर्ट कौन से रेट कौन से दिन का लेंगे हम लोग? जो अब इम्पोर्ट रहता है उसमें दो चीजें रहते हैं, बिल ऑफ एंट्री एंड एंट्री इनवर्ड. तो 2 दिन का बिल्स रहेगा. ये जब हम लोग इम्पोर्ट प्रोसीजर करेंगे तभी पता चलेगा. तो वो केस में क्या रहता है? 2 बिल्स रहते हैं. ठीक है, सो देयर विल बी रेट ऑन द डेट ऑफ bill of entry or rate on the सिर्फ date of bill of entry or date of entry inward, whichever is later. So you will have 2 dates and 2 rates of basic custom duty. तो बिल ऑफ एंट्री के डेट पे भी एक बिल रेट रहेगा एंड बिल ऑफ एंट्री के डेट पे भी एक बिल रहेगा. फॉर एग्जांपल समझो बिल ऑफ एंट्री है, आज का डेट है 26 जून 21 एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज है 10%. ठीक है, एंड एंट्री इनवर्ड का है, एंट्री इनवर्ड का डेट है से 29 जून 21 एंड उस दिन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 7%.
ओके तो हम लोग कौन सा डेट लेंगे, रेट कौन सा लेंगे, बेसिक सी बिल ऑफ एंट्री पास हुआ है 26 जून 21 को, वेयर बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10% and entry inward is passed on 29th June and basic custom duty is 7%. तो हम लोग कौन सा परसेंटेज लेंगे, आउट ऑफ दीज टू whichever is later. तो कौन सा लेटर है दोनों में से कौन सा लेटर है, लेटर मतलब बाद में, तो 26 जून बाद में आता है कि 29 जून बाद में आता है, 29 जून. तो 29 जून पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट रहेगा that will be applicable. Understood? So which date are you going to, which rate you are going to take, rate on date of bill of entry or date of entry inward, whichever is late. Understood this much? Yes, written Yes. everyone. So No, ma'am. this was the basic point on basic custom duty. ठीक है, इतना ही है, ज्यादा नहीं है. तो इसमें सिर्फ याद रखने का स्टैंडर्ड रेट एंड प्रेफरेंशियल रेट. प्रेफरेंशियल रेट किसको एप्लीकेबल रहेगा, इफ दोज आर प्रेफरेंशियल स्टेट्स, प्रेफरेंशियल कंट्रीज स्पेसिफाई किया है गवर्नमेंट ने, देन प्रेफरेंशियल रेट विल बी एप्लीकेबल. डन राइटिंग? Yes, ma'am. ओके देखो फिर कौन सा था, वो जो टेबल बनाया था फॉर्मेट, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद क्या था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी. ठीक है, अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्यों होता है, मतलब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी बहुत स्पेसिफिक केस में रहेगा, मतलब हर केसेस के अंदर नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज नाउ मर्ज्ड विद IGST, मतलब वो GST के साथ मर्ज हो गया. ठीक है, इसलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं रहता है, बट अगर क्वेश्चन में दिया है तो फिर उसको कंसिडर करने का. ठीक है, तो क्या है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CVD. ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी को क्या बोलते हैं, CVD भी बोलते हैं. नाउ व्हाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज लेविड, इट इज लेविड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री. नाउ हाउ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अब सबको पता है कि अभी होली गया. ठीक है, तो होली के टाइम जो भी पिचकारी वगैरह था, मोस्ट ऑफ द दिवाली होली के टाइम टॉयज कहाँ से आते हैं इंडिया में, मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम चाइना, राइट. जो भी पिचकारी वगैरह दिए वगैरह रहता है, लाइटिंग्स एंड ऑल दीज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, मोस्टली दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. अब उसके वजह से क्या होता है, व्हाट इज द मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया, व्हाट इज द मेजर कंसर्न, बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्ट द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आर अफेक्टेड. ओके, तो चाइना क्या करता है, डंप करता है. इट इज कॉल्ड, जब हम एंटी डंपिंग करेंगे ना तभी समझेगा अच्छे से. चाइना क्या करता है, बल्क में प्रोड्यूस करता है. अब कोई भी चीज तुम बल्क में प्रोड्यूस करोगे, उससे क्या होगा, यू विल गेट अ कॉस्ट बेनिफिट, आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो जिसकी वजह से चाइना का कॉस्ट कम हो जाता है, एंड चाइना वो सारी चीजें क्या करता है, इंडिया में डंप करता है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन इंडिया. सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है, दैट्स वाई वो मेक इन इंडिया वाला इतना जो इनिशिएटिव है वो निकाला है, सो दैट बिकॉज ऑफ दिस द मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आर अफेक्टेड. जो भी अभी पिचकारी है, तो अगर पिचकारी अगर चाइना का यूज करेंगे, तो जो लोग इंडिया में पिचकारी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनका क्या होगा. ओके, तो उनके लिए तो मार्केट नहीं बचेगा, बिकॉज वी आर द अल्टीमेट बायर्स. सो हम लोग तो क्या देखेंगे, विच एवर इज चीप. तो जो भी सस्ता वाला रहेगा, तो सस्ता तो अपने को कौन सा पड़ेगा, चाइना वाला. सो इससे क्या होता था, मोस्ट ऑफ द बायर्स वेर रनिंग बिहाइंड द चाइनीज प्रोडक्ट्स, जिसके वजह से द इंडस्ट्री इन इंडिया इज अफेक्टेड. कोई भी, दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल, बट ऐसे बहुत सारे गुड्स है जो इम्पोर्ट होने की वजह से, नॉट ओनली फ्रॉम चाइना, फ्रॉम एनीवेयर, इन केस ऑफ कार्स, in case of mobiles, anything, when they are coming from, whenever we are importing any goods, same goods India में भी manufacture होता है, but because of this import, the industry, the manufacturing industry in India is affected. तो उसको काउंटर वेल करने के लिए, काउंटर वेल मतलब क्या, काउंटर बैलेंस करने के लिए, वो जो मैन्युफैक्चरर्स को लॉस हो रहा है उसको
मैन्युफैक्चरर्स को लॉस, मतलब मैन्युफैक्चरर्स कोई नहीं खरीदेगा, मैन्युफैक्चरर्स नहीं कमाएगा तो गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो जो बेनिफिट जो लूज हो रहा है गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ लूजिंग एक्साइज ड्यूटी, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगा, इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वी आर इम्पोर्टिंग द गुड्स, तो वो केस के अंदर गवर्नमेंट क्या बोलती है, वी विल नॉट टेक अवर लॉस। तो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के अंदर, इफ यू आर इम्पोर्टिंग दोज गुड्स देन वी विल अप्लाई दिस काउंटरवेलिंग ड्यूटी टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ एक्साइज ऑन इम्पोर्ट। आया समझ में इतना? ठीक है। अगर समझो कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है या इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग एग्जम्प्ट है एक्साइज से, there is no excise leviable, it is exempted from excise in India if it is manufactured in India, तो उसके ऊपर CVD लगेगा क्या? उसके ऊपर CVD नहीं लगेगा। The goods which are manufactured in India, okay, but still we are importing those goods which are manufactured in India and they are exciseable, they are dutyable, उसके ऊपर टैक्स लगता है, but instead of manufacturing what are we doing, we are importing, तो in that case to counterbalance this effect government levies the CVD। Understood? तो इसका जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, it is equivalent टू, क्या रहेगा, कितना कवर करेगी, अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ओनली, इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑफ लाइक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ओके, सो इट इज द इक्विवेलेंट टू, मतलब जितना, अगर इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग अगर वो गुड्स हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते थे तो कितना एक्साइज ड्यूटी लगता था, दैट मच विल बी द काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ओके, एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन, किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन assessable value plus basic custom duty। ठीक है, बट इफ एनी गुड्स इज एग्जम्प्ट इन इंडिया तो उसके ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगेगा। ओके, मोस्टली these are subsum, these are merged with the GST, but in case if in question it is given then you must know कि वो किसके ऊपर कैलकुलेट करना है। ओके, आया समझ में? ठीक है, इसके बाद एक आता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो मर्ज्ड विद द, ये क्यों इफेक्ट होता था, एक्साइज ड्यूटी के लिए। इसके बाद थर्ड आता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी दैट इज SAD। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी मतलब क्या, दिस वाज, इसको SAD नाम था। ओके, तो ये क्यों होता था, इट वॉज यूज टू ऑफसेट द, इट वॉज यूज टू ऑफसेट वैट और CST। ये क्यों यूज होता था, टू ऑफसेट द एक्साइज ड्यूटी। एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी क्यों लगाते थे, टू ऑफसेट दी वैट या CST, मतलब वैट या CST का जो भी इफेक्ट रहेगा वो ऑफसेट करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, नाउ बोथ CVD प्लस SAD आर सबसम इनटू GST। ठीक है, ये दोनों सबसम हो गए। बट इन केस इफ देयर इज एनी इन क्वेश्चन, SAD तो नहीं ही देंगे एग्जाम में, क्योंकि क्यों नहीं देंगे SAD, बिकॉज वैट और सर्विस टैक्स है ही नहीं, बट CVD दे सकते हैं बिकॉज एक्साइज ड्यूटी अभी भी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी है थोड़ा सा,
कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जैसे टोबैको हो गया, तो टोबैको के ऊपर एक्साइज प्लस जीएसटी दोनों लगता है। तो इन केस ऑफ एक्साइज दे कैन आस्क यू सीवीडी, बट एसएडी तो नहीं पूछेंगे बिकॉज इट इज टोटली सबसम्ड इन जीएसटी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. नेक्स्ट, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या है, दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी। सो इफ इट इज आउटसाइड जीएसटी कंप्लीटली देन उसके ऊपर तो सीबीडी और एसएडी आएगा। ओके, डन राइटिंग एवरीवन? ठीक है, चलो वो चार्ट में देखो क्या क्या किया हम लोग ने। यस, पहले क्या किया था, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। उसके बाद क्या आता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। गिव नेक्स्ट हेडिंग सोशल विच इज SWS। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज? किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। इट इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। पहले क्या था इसके जगह पे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्या था इसके जगह पे पहले? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ना वो निकाल के क्या कर दिया है उन्होंने, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, ओके, इट इज बेसिकली 10% at the rate of 10%. So it is 10% of social welfare surcharge. ठीक है, बट इन केस ऑफ दिस इज 10%, बट अगर कस्टम ड्यूटी लगाते हो मोटर स्पिरिट के ऊपर, ओके, फाइनेंसिंग, अगर इफ देर इज एनी मोटर स्पिरिट, इन केस ऑफ मोटर स्पिरिट दैट इज पेट्रोल, या फिर अगर हाई स्पीड डीजल है, और हाई स्पीड डीजल, in this case the percentage is 18%. Sorry, it is rupees 18 per liter. 18 per liter, मतलब जितना भी लीटर्स तुम इंपोर्ट करते हो 18 per liter will be the SWS. So instead of percentage it is rupees 18 per liter. ठीक है, आ गया समझ में इतना? यस मैम। ओके, इसके बाद क्या था, ये होने के बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एडिशनल ड्यूटीज। एडिशनल ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को बोलूँ, इसका एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल वैल्यू इज इक्वल टू, से वैल्यू इज इक्वल टू 10 lakhs, basic custom duty is 10% and IGST is 5%. तो कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले क्या आएगा, वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू 10 lakhs। इसमें सबसे पहले क्या ऐड होगा, व्हाट विल बी एडेड, बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितने परसेंटेज पे, 10%। दिस 10% इज कैलकुलेटेड ऑन 10 lakhs। तो 10 लाख का 10% निकालोगे तो 1 lakh. 1 लाख। ओके, फिर इसके बाद क्या ऐड होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी। दिया है क्वेश्चन में काउंटर वेलिंग ड्यूटी, नो, तो नहीं लेने का। उसके बाद क्या आएगा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। दिया है क्वेश्चन में, नहीं, फिर भी लेने का। ठीक है,
because SWS is calculated at 10% on basic custom duty. तो 1 लाख का 10% कितना आएगा? 10,000. ठीक है. फिर इसके बाद क्या आएगा? और 3-4 ड्यूटीज है जिसका हम लोग ने एग्जाम्पल नहीं लिया. उसके बाद क्या है? IGST. तो IGST किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे? लास्ट में देखो वो चार्ट के अंदर सब ऐड होने के बाद. तो ये पूरा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 11,10,000. नाउ ऑन दिस यू विल ऐड IGST at the rate of 5%. तो कितना आएगा? 10. 1,11,000 का हाफ करोगे तो 50,000. कितना आएगा? 55,000. 55,500. 55,500. जो भी टोटल करोगे 10 लाख है ना, 11,65,500. अंडरस्टूड? कैसे कैलकुलेट करना है? डन एवरीवन? इज एनीवन राइटिंग? Done, ma'am. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है उसके बाद? Additional duties. एडिशनल ड्यूटीज. एडिशनल ड्यूटीज में पहला ड्यूटी कौन सा है? Safeguard duties. सेफ गार्ड ड्यूटी. सेफ गार्ड ड्यूटी. तो लिखो सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है? इफ द, अभी सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है? अगर समझो कि इफ गवर्नमेंट फील्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव ड्यूटी. इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट, इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब क्या? अगर इंडिया में हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट इज द इंडिया, इफ द इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, इफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अफेक्टेड, देन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्या लगाएगी? सेफ गार्ड ड्यूटी. टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्या लगाएगी? सेफ गार्ड ड्यूटी. जस्ट अ सेकेंड. So safeguard duty. So if the government feels that because of the import, if the domestic industry in India is affected, then to protect the interest of the manufacturers, to protect the interest of the country, government क्या लगाएगी? safeguard duty लगाएगी. ठीक है. तो इट विल अप्लाई द सेफगार्ड ड्यूटी. सो इट इज मोस्टली WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से रहता है. इट इज WTO complaint, and if the government has opinion that huge volumes of imported goods, has opinion that huge volumes of imported goods is causing injury to the domestic industry, is causing injury to the domestic industry, then central government may impose the safeguard duty. Then central government may impose safeguard duty.
ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर देगी, सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज कर देगी. अगर उसको कहीं पे भी लगा कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री अफेक्ट हो रहा है, देन इट विल लेवी द सेफ गार्ड ड्यूटी. ठीक है. अब इन द फॉलोइंग केसेस, जो भी क्वेश्चन जितना परसेंटेज रहेगा, किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, वो सब क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा. ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट सेफगार्ड ड्यूटी is not applicable or not payable if goods are imported from a developing countries. If goods are imported from a developing country and if there is one condition, the share of import from a developing country, share of import from developing country is not more than 3% of, is not more than 3% of total import of goods, and second condition, if goods are imported from more than, if goods are imported for from more than one developing countries, from more than one developing countries having up to 3% share, having up to 3% share, then total must not be more than 9%. Then total must not be more than 9%. लिखा है इतना? मैम वेट दो 2 मिनट्स. यस. नेक्स्ट इसके बाद एक पॉइंट लिख देना, ए सेफगार्ड ड्यूटी मतलब एसजीडी. एसजीडी इज एप्लीकेबल irrespective of percentage of import when it is done from developed countries. इतना लिखो, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं. टेल मी व्हेन यू आर डन. ओके. मैम डन. Done? Yes, everyone done. Is anyone writing? No, ma'am, not done. Done or not done? Not done. हाँ.
मैम लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? SGD is applicable is applicable irrespective of percentage of import, irrespective of percentage of import when it is done from developed countries, when it is done from developed countries. लिखा? yes मैम. हाँ, चलो अभी एक एग्जांपल देखते हैं और हम लोगों ने क्या लिखा है वो समझते हैं. ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल we are importing toys are imported. ठीक है, से चाइना से आया है, चाइना से आया है 42% का, फिर मेक्सिको से 2.5%, मेक्सिको से 2.5%, फिर ईरान से 3%, ईरान से 3%, श्रीलंका से 3%, फिर ताइवान से 2.5%, ओके, साउथ कोरिया से 15%, एंड यूएस से 2%. ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग टॉयज इंपोर्ट कर रहे हैं. अब हम लोग ने क्या बोला है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा, बट यहाँ पे क्या लिखा है? सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट पेएबल इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ पे मैं लिखती हूँ चाइना एंड यूएस आर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, जो चाइना और यूएस है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज है, बाकी सब डेवलपिंग कंट्री है. मेक्सिको भी डेवलपिंग है, ईरान भी डेवलपिंग है, श्रीलंका भी डेवलपिंग है, ताइवान भी डेवलपिंग है, साउथ कोरिया भी डेवलपिंग है. ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है. क्या लिखा है? सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट पेएबल इफ गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री. अगर डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा if these two conditions are satisfied. if these two conditions, बीच में क्या वर्ड यूज किया है? and मतलब ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा, अदरवाइज वो कंट्रीज के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा. अब क्या बोला है उसमें? शेयर ऑफ इंपोर्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या है? शेयर ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री इज नॉट मोर देन 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स. मतलब मैं जितना टोटल इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं जितना भी टोटल इंपोर्ट कर रही हूँ उसमें वो जो डेवलपिंग कंट्री का शेयर है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3%. मतलब वो डेवलपिंग कंट्री का जो शेयर है वो 3% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए मेरे टोटल. मतलब अगर मैं 100 टॉयज इंपोर्ट कर रही हूँ तो अगर मेरे को एक डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट करना है एंड इफ आई वांट कि सेफगार्ड ड्यूटी ना लगे देन आई हैव टू मेक श्योर दैट आई इंपोर्ट लेस देन 3%, ओके, फ्रॉम वन डेवलपिंग कंट्री. लेकिन एंड क्या बोला है? मतलब अगर समझो कि मेरा टोटल इनपुट है, अगर मैं से साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट कर रही हूँ एंड मेरा जो साउथ अफ्रीका इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो अगर समझो मैं साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट कर रही हूँ एंड उसका जो परसेंटेज ऑफ शेयर है इफ इट इज 2%, तो जो मैंने इंपोर्ट किया है उसके ऊपर मेरे को सेफगार्ड ड्यूटी भरने का जरूरत नहीं है. बट अगर मैंने साउथ अफ्रीका से जो इंपोर्ट किया है इफ इट इज 4%, तो 4% मतलब मोर देन 3% हो गया,
तो इन दैट केस जो भी मैंने साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया है, ऑन दैट आई हैव टू पे सेफ गार्ड ड्यूटी. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, so if you are importing from a developing country, अगर डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसका जो शेयर रहेगा दैट शुड नॉट बी मोर देन 3%, मतलब 3% से कम होना चाहिए, ओके, ऑफ आवर टोटल इंपोर्ट. एंड बीच में क्या दिया है? एंड. इसके साथ साथ अगर समझो इंस्टेड ऑफ वन डेवलपिंग कंट्री आई एम इंपोर्टिंग फ्रॉम वन से ज्यादा, वन और मोर, मतलब मोर देन वन, मतलब 2, 3, 4, 5, एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज से अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ एंड सबका जो परसेंटेज है वो लेस देन 3% है, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो टोटल रहेगा, टोटल मस्ट नॉट बी मोर देन 9%, मतलब टोटल मिला के जो रहेगा वो 9% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. ठीक है. एंड जो लास्ट वाला एसजीडी है, तो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? एसजीडी इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट व्हेन इट इज डन फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज. अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हो तो कितना भी परसेंटेज रहने दो, उसके ऊपर एसजीडी लगेगा ही लगेगा. ठीक है. ये हो गया, लिख के इतना रफ करो. अभी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है. What is given in example? You are importing toys. You are importing Mexico, Iran, Sri Lanka, US, Taiwan, South Korea and China. अब इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज को तो इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज एसजीडी एप्लीकेबल हो जाएगा. तो फर्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट विच आर द डेवलप्ड कंट्रीज. तो कौन सा है इसमें डेवलप्ड कंट्रीज? मैंने वहां पे लिखा है चाइना एंड यूएसए. तो चाइना से तुम कितना इंपोर्ट कर रहे हो? 42%. तो हियर एसजीडी इज एप्लीकेबल. ठीक है. 42. एंड यूएस में 2% कर रहे हो. यूएस से जितना टॉयज इंपोर्ट किया है दैट इज जस्ट 2%. इट इज लेस देन 3, बट यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो यहाँ पे भी एसजीडी एप्लीकेबल हो जाएगा. एसजीडी एप्लीकेबल हो जाएगा. आया समझ में? इसके बाद सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या देखने का कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उसमें उनका शेयर विच इज मोर देन 3%. बिकॉज अपना कंडीशन क्या है? इफ शेयर इज लेस देन 3% तो एसजीडी एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इफ योर शेयर इज मोर देन 3% देन एसजीडी विल बी एप्लीकेबल. तो अभी इतने जितने भी है उसमें से मेरे को निकाल लेने का कि मोर देन 3% किसका किसका है. तो मेक्सिको इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन मेक्सिको का शेयर कितना है? 2.5%. तो यहाँ पे एसजीडी के लिए फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो गया. फर्स्ट वाला जो कंडीशन था ना, शेयर शुड बी लेस देन 3%, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल हो गया. नाउ ईरान, तो ईरान का भी 3% है, 3% से ज्यादा रहना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा, एसजीडी नहीं आएगा. ताइवान इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन उसका भी इंडिविजुअल शेयर कितना है? 2.5%, तो यहाँ पे भी एसजीडी नहीं आएगा. साउथ कोरिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड उसका शेयर कितना है? 15%. सो हियर इसका शेयर इज मोर देन 3%, तो यहाँ पे भी एसजीडी एप्लीकेबल हो जाएगा. आया समझ में? सेकेंड निकाल लिया. अब थर्ड क्या देखने का? जितने भी अभी बचे, मतलब 1, 2, 3 एंड 4. नाउ दीज 4 आर डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट, दीज 4 का इंडिविजुअल शेयर इज नॉट मोर देन 3%, मतलब इट इज 3 और लेस देन 3, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया. उसके बाद अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो एसजीडी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एसजीडी एप्लीकेबल है. सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है कि उनका टोटल जो है शुड नॉट बी मोर देन 9%. तो इसके बाद का स्टेप क्या रहेगा? जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, डू टोटल ऑफ रिमेनिंग डेवलपिंग
कंट्रीज जिसका शेयर इज लेस देन और इक्वल टू 3%. ठीक है, दिस इज द थर्ड स्टेप. डू टोटल ऑफ रिमेनिंग डेवलपिंग कंट्रीज. अब कितना बचा? मेक्सिको का 2.5. सो हियर आई राइट मेक्सिको का कितना है 2.5 प्लस ईरान का 3 प्लस श्रीलंका का 3% प्लस ताइवान का 2.5%. कितना आता है? 3 + 3 6, 6 + 4 8 + 2 10 11. कितना आ गया? 11%, विच इज मोर देन 9%. देयरफॉर सबको एसजीडी एप्लीकेबल हो जाएगा. सबको एसजीडी एप्लीकेबल हो जाएगा. यहाँ पे भी एसजीडी एप्लीकेबल एंड यहाँ पे भी एसजीडी एप्लीकेबल. आया समझ में? यस मैम. यस. अगर समझो यहाँ पे अगर लेस देन 9% आता था तो जितने भी बैलेंस डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एसजीडी एप्लीकेबल नहीं रहता था. ओके, अंडरस्टूड. तो सबसे व्हाट इज द फॉर्मेट? पहले तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका तो इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज एसजीडी एप्लीकेबल हो ही जाएगा. तो पहले वो कंट्रीज निकाल लेने का. फिर उसके बाद जिसका मोर देन 3% है, मतलब ये जो एक्सेप्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, वो निकाल लेने का. उसके बाद जो बचे हुए हैं मतलब उनका क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है कि लेस देन 3% है, तो अभी मेरे को सेकेंड कंडीशन चेक करने का, मतलब टोटल 9% से ज्यादा है कि नहीं. तो फिर जो बचे हुए कंट्रीज है उनका टोटल करने का. Okay, and if that total is more than 9%, तो SGD is applicable. If total is less than 9%, then SGD is not applicable. Okay? Understood? Take down this example. Done everyone writing? यस मैम. Is anyone writing? Okay, so we stop here for the day and we and आज पढ़ के आना, ये जो कस्टम से पढ़ के आना, बिकॉज कल के टॉपिक में काम आने वाला है, एमसीक्यूज में काम आने वाला है ये सब चीजें. ओके, डन एवरीवन राइटिंग? इज एनीवन राइटिंग येट? नो मैम. ओके, चलो बाय एवरीवन. मैम वो लास्ट वाला, हाँ हाँ, मैम वो लास्ट वाला थर्ड पॉइंट है, वो डू टोटल ऑफ रिमेनिंग 3 कंट्रीज लेस देन 3%. नो, रिमेनिंग डेवलपिंग कंट्रीज. हाँ, वो लेस देन 3% है या लेस देन और इक्वल टू 3%. ओके मैम. ये लेस देन और इक्वल टू 3%, मतलब जिसका 3% है वो भी आ जाएगा, बिकॉज अपना कंडीशन क्या है, नॉट मोर देन 3%. 3% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. तो यहाँ पे लेस देन 3 से कम या फिर 3, उनका टोटल करेंगे. ओके मैम. यस, डन एवरीवन? भव्यश्री, खुशी, आर यू राइटिंग? मैम डन. यस मैम. खुशी, आर यू राइटिंग? यस मैम. ओके. डन. कल पढ़ के आना, ठीक है? ओके, चलो बाय एवरीवन. शाला Bye. ओके, बाय.